I welcome you all back to this learning sessions that we have been doing since a long time. This marathon, we call it marathon series, and today we have a very special guest coming to teach us. He's a very senior physician, Dr. Sanjeev Dole sir from Pune. He has been practicing homeopathy successfully since last almost 40 plus years, and uh, and I can tell you, I've had a fortune that when I was doing my undergraduation from DSHMC Pune, uh, we had his OPD in college. So we had the fortune of attending his OPD and learning from him, and we came to know that he is such a huge encyclopedia of homeopathy. And when it comes to boric, he has a photostat memory. He remembers pages, lines, commas, full stops, everything about boric materia medica. And apart from that, his knowledge is so wide, and it's spread over decimal scales, how to use decimal scales, how to use mother tinctures, and you name it, and he knows it. So I thought that I requested, and we are very fortunate that he is uh, coming. He is coming online. He recently started sharing his tips on Instagram, and it's good to see you. Homeopathy heals. To see you too. And today we are here to share. He recently also wrote a book, and I'm going to discuss about that. His book is Homeopathy Simplified. I also tell you that how can you all have this book, and I just like to share something with you which happened yesterday to me. I had a fortune of meeting a very big saint, is Param Pujya Gyan Vatsal Swami, and the topic which he was discussing yesterday with all the fellows was that happiness is giving. He said that how happy one person could feel but just by merely giving things, and I could correlate to this series that we have been so fortunate that we all have met through this platform, through this channel, and we have been all seeing each other regularly. We have been sharing. We have had such busy practitioners agreeing to come here and sharing without any their own personal interest. So this is what we are here for, and we are ready to share. Sanjeev Dole sir should join in any time, and it is going to be a very knowledgeable session today. Good evening, sir. नमस्कार, गुड इवनिंग थैंक यू सो डॉक्टर मच सर. अभिषेक. पहले तो सर थैंक यू सो मच, आप अग्री किए, आप आने के लिए आपने अग्री हो गए. आप इतने बिजी प्रैक्टिस में होते हैं, फिर भी आपने कुछ सोचा कि चलो बच्चे लोग पे थोड़ा ये हो जाए, स्टूडेंट्स पे. आपके नॉलेज का फायदा हम सबको आज मिलने वाला है. सो पहले से ही सर हाथ जोड़ के थैंक यू बोलता हूँ. थैंक यू. सर सीधा शुरू करते हैं. मैंने सबको शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया आपके बारे में, बट आपका इंट्रोडक्शन देने के लिए कम से कम 20-25 मिनट का टाइम लगेगा. आपका इतना वास्ट प्रैक्टिस है सर. तो आज मैंने सर बहुत सिस्टमैटिकली आई थॉट दैट आई आस्क यू सर, आप कौन से ईयर में सर आपने होम्योपैथी से पास आउट किया था सर? आप कौन से ईयर में आपने प्रैक्टिस शुरू किया? फर्स्ट ऑफ ऑल, माय डियर होम्योपैथिक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मुझे डॉक्टर अभिषेक ने जो अपॉर्चुनिटी दी है थोड़े मेरे व्यूज आपके साथ शेयर करने के लिए, इसके लिए मैं डॉक्टर अभिषेक का धन्यवाद देता हूं और आप सबको नमस्कार करता हूं. जो स्टूडेंट्स है, जो न्यू प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके लिए एक बेस्ट ऑफ लक उनको देता हूं और अपना डिस्कशन शुरू करते हैं. मैंने मेरा होम्योपैथिक ग्रेजुएशन 1982 में कंप्लीट किया, DHMS. that time the course was diploma in homeopathic medicine and surgery, DHMS, 4 years diploma course actually. And no,
आपको हंसी होगी सुनते टाइम कि उसके बाद कोई हम ग्रेजुएशन के बाद इंटर्नशिप वगैरह ये कोई सिस्टम ही नहीं था। लास्ट पेपर होने के बाद या एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद यू आर अलाउड टू प्रैक्टिस। 95% लोग वो टाइम एलोपैथी प्रैक्टिस करते थे, जस्ट बैकडोर टू एलोपैथी। ये आई वाज आल्सो इन द सेम लाइन के एलोपैथी एमबीबीएस को एडमिशन नहीं मिला था, इसलिए मैं होम्योपैथी लिया था एडमिशन। और बाद में ये मेरा प्लान ये था कि जीपी करना है, क्योंकि होम्योपैथी कोई नॉलेज भी नहीं था और उतना बाकी कोई ज्यादा सीखा भी नहीं था। लेकिन मुझे पूना में आने के बाद 82 में मुझे एक ऐसे गुरु मिले। मेरा भाग्य है कि डॉक्टर धर्माधिकारी, डॉक्टर एस.डी. धर्माधिकारी, ही वॉज प्रैक्टिसिंग इन पुणे एट दैट टाइम एंड मुझे आई वॉज सो लकी कि मुझे उनके साथ काम करने को मिला और पूरा व्यूज चेंज हो गए। मैंने उनके साथ 2 साल काम किया और डिसीजन लिया कि मैं अभी होम्योपैथी प्रैक्टिस करने वाला हूँ। तो एक भी दिन मैंने एलोपैथी प्रैक्टिस किया नहीं। डे 1 से मैंने होम्योपैथी प्रैक्टिस, प्योर होम्योपैथी किया और आज तक वो सिलसिला चल रहा है। सर, अभी आपने बोला कि आप बहुत श्योर नहीं थे जब भी पास हुए कि आप धर्माधिकारी सर को मिले एंड उन्होंने आपको इंस्पायर। तो वो जो आपका 2 साल का फेज था उसमें आपको क्या ऐसा उन्होंने, कौन सा बुक्स आपने उन्होंने बताया या फिर क्या मेथड ऑफ प्रैक्टिस उन्होंने आपको इतना अच्छा दिखाया कि आप मतलब आपने पूरा माइंड चेंज कर दिया कि आप जनरल प्रैक्टिस नहीं करके सीधा होम्योपैथी में आ गए? डॉक्टर धर्माधिकारी वॉज एमडी एलोपैथ एक्चुअली, और एयरफोर्स एक्स फ्लाइंग ऑफिसर थे एयरफोर्स में, और रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने होम्योपैथी प्रैक्टिस शुरू किया। और पूना से 16 किलोमीटर दूर एक लिटरली एक खेत में उनका एक बंगलो था, वहां उन्होंने प्रैक्टिस शुरू किया। और वो 1982 के, आई एम टॉकिंग अबाउट 1982, वो टाइम उनकी प्रैक्टिस 150 टू 100 पेशेंट्स पर डे ऐसी प्रैक्टिस थी। और उन्होंने वो एक सर्विसमैन थे, इसलिए ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट। सुबह 7:30 बजे उनके घर में पहुंचना था, उनके क्लिनिक में सुबह 7:30 बजे, और 7:30 से अगर 7:45 हो गए तो हकल देते थे, गेट आउट। आने का टाइमिंग फिक्स था, जाने का टाइमिंग फिक्स नहीं था। पूछना नहीं है मैं कब जाऊँ बाबा, वो जब उनके मन में आता था अभी तू जा घर पे, वो टाइम निकलता ना, रात में 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, कितने भी बजे। और ऐसे 2 साल में एक भी दिन छुट्टी नहीं लेना, नो हॉलीडेज। ऑलमोस्ट इतना स्ट्रिक्ट मिलिट्री ट्रेनिंग जैसे ही हो गया फिर। मिलिट्री ट्रेनिंग था। और उन्होंने ऐसा पूरा सब जितना दे सकते उतना दिया उन्होंने, लेने की अपनी कैपेसिटी कम थी। तो वो सर, वो भी एलेंस और बोरिक के टाइप का प्रिस्क्रिप्शन पे ही, मतलब उनका भी बेसिस वही था सर? हाँ, उनका एक तो एलन केनोट और बोरिक, ये 2 में वो मास्टर थे। और इतने नंबर ऑफ पेशेंट्स इतने देखे थे कि उनके सॉर्ट ऑफ फॉर्मूले तैयार हो गए थे उसमें। तो सेम प्रैक्टिस, सेम मेथड मैंने अडॉप्ट किया और उस सेम मेथड से मैं आगे गया, और कोई चेंज किया ही नहीं, आज तक नहीं किया मैंने चेंज, और कोई प्रॉब्लम नहीं आया। रेगुलर प्रैक्टिस डेवलप होती गई। पूना में प्रैक्टिस करना, एक तो खेड़े में से मैं आया था, रूरल एरिया से आया था, लेकिन क्या भगवान के शुरू हो गया। एंड सर, आपका इनिशियल इयर्स ऑफ प्रैक्टिस में आपका क्या टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट था, कि आपको लगता था कि आपको क्या, बिकॉज मैं बाद में आगे जाके बोलता हूँ कि आपने हमको कॉलेज की ओपीडी में क्या सिखाया था, बट देन आपका इनिशियल इयर्स ऑफ डेज में व्हाट इज योर इंक्लिनेशन? आप क्या ज्यादा इंक्लाइन होते थे, कि कौन से पेशेंट आपको ज्यादा देखने के इंटरेस्ट होता था? देखो, नंबर ऑफ पेशेंट्स
मैं सब स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करता हूँ कि जितने नंबर ऑफ पेशेंट ज्यादा देखेंगे उतना फायदा। एक्चुअली कॉलेज को ओपीडी में भी मेरा हमेशा मैं इंसिस्ट करता था कि आज मेरे ओपीडी में जितने पेशेंट है उतने मत देखो, आज पूरे हॉस्पिटल में जितने पेशेंट्स आए वो उनके सबके केस पेपर से आप निकल के देखो। जितना ज्यादा पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन हो जाएगा, नंबर ऑफ पेशेंट्स आप जितना ज्यादा देखेंगे उतना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। हिमोराइड्स के केसेस है, फॉर एग्जांपल न्यू प्रैक्टिशनर को थोड़ा प्रॉब्लम आता है, क्या करें? पेशेंट नेचुरली पेशेंट पूछता है डॉक्टर साहब मुझे कब रिलीफ मिलेगा? आपको ये बताना चाहिए कि ये थर्ड डे आपको ये रिलीफ आएगा, आपका ब्लीडिंग इतने दिन में कम हो जाएगा, पेन इतने दिन में कम हो जाएगा, ये बताना जरूरी है। उसके लिए नंबर ऑफ पेशेंट्स आप जितने ज्यादा देखोगे उतना फायदा होगा। तो सर एज यू सेड कि अगर कोई इनिशियल बहुत यंग प्रैक्टिशनर शुरू करता है तो अभी आपने बोला है तो उसी से स्टार्ट करता हूँ कि अगर कोई बोलता है हीमोरॉइड्स, अभी आपने बोला यू शुड बी एबल टू आंसर हाउ मेनी डेज मिलेगा। तो कुछ पेशेंट के इंक्वायरी को तो प्रॉपर आंसर तो देना चाहिए। यस सर, देना चाहिए। तो अगर कोई जूनियर प्रैक्टिशनर है जो शुरू करने वाला है तो व्हाट ऑल उनको उसको कौन से रेमेडीज का थोड़ा डीपर नॉलेज होना चाहिए फॉर हेमोरॉइड्स के लिए क्या उसको ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए? हाँ, सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज क्या है इसमें, प्रैक्टिस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ 95% पेशेंट्स वो आपको रेमेडी बोलते हैं, मुझे ये रेमेडी दे दो, ये खुद बोलते हैं। 95% अपने को खुद को ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैंने जो मेरे बुक्स का नाम जो होम्योपैथी सिंप्लीफाइड रखा है वो उसके लिए रखा है। 95% पेशेंट्स बताते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम आता है। हिमोरॉइड्स की लेडी बोलती है फर्स्ट प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी डिटेक्ट हुआ, उसके बाद 3 महीने के बाद मुझे पाइल्स शुरू हो गए। रेमेडी बोल दिया उसने कि मुझे कोलिनसोनिया चाहिए। रेमेडी बोल दिया, बाकी कोई सेकंड थॉट ही नहीं आना चाहिए। योर प्रिस्क्रिप्शन इज रेडी, कोलिनसोनिया, दैट्स ऑल। हिमोरॉइड्स का मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, इवन पेशेंट अगर डे टाइम में सुबह 10 बजे भी अपने पास आ गया तो स्टैट डोज देना है नक्स वोमिका 200, वो एट नाइट। पेशेंट को आज रात में डोज लेने के लिए बोलना है नक्स वोमिका 200 फॉलोड सल्फर इन द मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग नक्स वोमिका 200 रात में, दूसरे दिन मॉर्निंग में सल्फर 200, देन योर वेल सिलेक्टेड रेमेडी एक्ट्स। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। आप कोलिनसोनिया सिलेक्ट करो, एस्क्यूलर सिलेक्ट करो, रेटनिया सिलेक्ट करो, एसिड मूर सिलेक्ट करो, एसिड नाइट्रिक सिलेक्ट करो, इवन फिशर है, फिशर यू कैन थिंक ऑफ रेयर रेमेडी सेडम एक्रे। स्टूडेंट्स को जो अभी देख रहे हैं उनको मैं अपील करूंगा कि आप बोरिक में सेडम एक्रे पढ़ो जाके। सेडम एक्रे स्पेसिफिक लिखा है। फिशर मैंने जब भी पोस्ट किया था तभी लिखा था सर कि जो भी स्टूडेंट्स बैठेंगे आज वो सब लोग बोरिक लेके बैठे हैं, तो आप जो बोलते जाएंगे वो लोग बोरिक खोल के जाएंगे और अंडरलाइन भी करते जाएंगे। बिल्कुल बोरिक पढ़ना ही है रोज, आज भी मैं पढ़ता हूँ रोज। आई नो सर, बोरिक पढ़ना है, बोरिक एलेंस के नोट ये तो चाहिए। सेडम एक्रे, हिस्ट्री ऑफ टाइफाइड है इन हिमोरॉइड्स। हिस्ट्री ऑफ टाइफाइड कुछ नहीं, 5 साल पहले टाइफाइड हुआ था, 10 साल पहले टाइफाइड हुआ था। थिंक ऑफ एसिड मूर, दैट्स ऑल। कुछ बाकी देने की जरूरत ही नहीं। मैं तो एक्चुअली मैं मेंटल्स वगैरह पे ऊपर जाता नहीं क्योंकि मुझे उतना नॉलेज नहीं है। मेरा स्पेसिफिक मेडिसिन से ही मेरा काम चलता है और आई एम हैप्पी विद दैट, क्योंकि 40 इयर्स में मुझे टाइम ही नहीं मिला मेंटल्स में जाने के लिए। लेकिन इसमें ये जो सॉरी नहीं प्लीज कंटिन्यू सर आप। हाँ, तो पेशेंट जो बोलते हैं ना, इवन केस टेकिंग लेने के बाद, ऑस्टियोआर्थराइटिस नी का केस लेने के बाद मैं उसको रेमेडी निकालता हूँ, कुछ ब्रायनिया वाटर, काली कार्बन,
पेशेंट बाहर जाता है और फिर अंदर आके बोलता है, अरे डॉक्टर साहब एक चीज बोलने को भूल गया। क्या? तो स्टेयर केस उतरते टाइम बहुत पेन होता है मुझे, स्टेयर केस चढ़ते टाइम पेन नहीं होता। तो इसका मतलब यह है कि आपने जो काली कार्ब लिखा है प्रिस्क्रिप्शन में, आपके केस पेपर में, दैट इज रॉन्ग। आपने बैडिया का लिखना बढ़िया का। चाहिए। ये भी पेशेंट अपने को बोलता है, करेक्शन करता है, और क्या चाहिए, और फिर अपने को पैसे भी देता है। वो रेमेडी खुद बोलता है मुझे ये दे दो, फिर उसके बाद अपने को पैसे देता है। इससे और दूसरी कौन सी पैथी में ये नहीं है। इसलिए मैं होम्योपैथी सिंप्लीफाइड बोलता हूँ। बहुत सिंपल है, इंटरेस्टिंग है, और जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो अपने लिए बहुत अच्छा है। किडनी स्टोन के मैंने थाउजेंड्स केसेस ट्रीट किए हैं। इजीली किडनी स्टोन आप ट्रीट कर सकते हैं, एनी टाइप ऑफ किडनी स्टोन, और आप गारंटी के साथ बोल सकते हैं पेशेंट को नहीं, वो ठीक हो जाए। तो सर किडनी स्टोन के लिए आपका जो प्रिस्क्राइबिंग पैटर्न है, जो ऑब्वियसली हम लोगों ने तो बहुत, मतलब मैंने कॉलेज में से ही वो मैंने बोला था आपको, मैंने वो ड्राइंग बनाया था जो आपने डायग्राम दिया था, एक जो दो किडनी यूरेटस। तो सर उसके बारे में अगर थोड़ा आप बताएंगे ना सर, तो एवरीबॉडी विल बी एबल टू लर्न सर। सब जो अभी सुन रहे हैं होम्योपैथ्स, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये आप लिख के रखो, और 90% केसेस आप इससे सॉल्व कर सकते हैं, 90%। बाकी तो 10% ठीक है, छोड़ दो, उसके लिए अलग रेमेडी लगेगी, कॉन्स्टिट्यूशन लगेगा, जो भी कुछ है। किडनी स्टोन, राइट किडनी, renal calculi in right kidney, definitely think of lycopodium, osmium, lithium carb. Only 3 remedies are there which acts very well on right kidney. Renal calculi, any type of calculi in right kidney, think of these three remedies: lycopodium, osmium can, and lithium carb. Or when to use lycopodium, when to use lithium carb, हार्डली एक क्वेश्चन का ये सवाल है। लाइकोपोडियम एसोसिएटेड विद जीआई सिम्टम्स, गैसेस, फ्लैचुलेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लाइकोपोडियम। ऑसिमम कैन, if there is hematuria, even history of hematuria, think of osmium can. And third, lithium carb, rheumatic complaints, joint pain or swelling, gouty symptoms, think of lithium carb. That's all. Then right ureter, renal calculi, stone in right ureter. There are 2 remedies only in right ureter, calculi in right ureter. One is sarsaparilla and second is cardamom. Cardamom, very good liver remedy, cardamom. Right sided remedy, liver remedy, cardamom. Then how to differentiate into remedies? Sarsaparilla, burning in urethra after urination, think of sarsaparilla. Even hematuria, think of sarsaparilla. Second is cardamom, associated with liver complaints, anorexia, nausea, vomiting, or history of jaundice. Think of cardamom. Then stone in bladder. 2 remedies are there. One is acid oxalic and second is acid base. In benzoic acid in cases of bladder cancer. Yes, sir. Now think of in cases of left renal calculi, left renal. There are 2 remedies acts on left kidney. First is Parera brava, and another one is stigmata. Yeah. Stigmata media. Stigmata in cases of left renal calculi. And another rare remedy, that is hedioma. Very interesting remedy, hedioma and hypomia, but associated with UTI, urinary complaints, burning, urine infection sort of thing with calculi. Think of hedioma or hypomia.
Then left ureter. Please open tabacum. Tabacum, boric materia medica, tabacum, urinary complaint, second line. I Pain remember along this with, very well, sir. sorry. I remember this very well, sir. Tobacco, Ye- we never knew, we never could think. But आपने जब से दिया Yes, इतना सक्सेसफुली काम करता है कि अगर लेफ्ट यूरेटर में है, exactly. within 2-3 doses, thing calculi will fall out. Yes, Wonderful tobacco, left sir. ureter. Yes, Tabacum. And another one is Cirrus B. Cirrus B. In some books, it has written in right ureter also, but okay. my experience is in left ureter. Cirrus B works very well, very well. Okay. Another interesting remedy, that is Colophyllum. Generally, we use Colophyllum as a muscle relaxant for labor pain and sort of. But the same application मैंने ये ट्राई किया इन impacted stone जो है in ureter, and I found very well results with the help of Colophyllum. Yes. Associated with small joint rheumatism, small joint pain. एक क्वेश्चन किया तो मुझे लगता है कि बस हो जाता है, ज्यादा कुछ जरूरत नहीं रहती. हार्डली मेरा केस टेकिंग हार्डली 2 मिनट का रहता है, 2 या 3 मिनट का. मैं जनरली जो चीफ कंप्लेंट है, ये मेरा जनरल प्रैक्टिस है, जो मैं चीफ कंप्लेंट मैं दूसरे सिम्टम्स, दूसरे सिम्टम के साथ कॉन्कोमिटेंट के साथ मैं जोड़ता हूँ और वो रेमेडी मैं सिलेक्ट करता हूँ. जनरली मेरा ये मेथड है. That's how, sir. वो जो आपका जो बुक है उसमें वही मेथड से जो आपने एक्चुअली इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वेज ऑफ प्रिस्क्राइबिंग जो आप हमेशा सिखाते थे, बहुत सारे टीचर्स सिखाते, लेकिन आपने फाइनली इस बुक के अंदर वो फॉर्मेट ही रखा है कि रूमेटिक कंप्लेंट्स, फिर मोडालिटीज एंड लास्ट में कंकॉमिटेंट दिया है. अगर कंकॉमिटेंट मिल गया तो ये रेमेडी काम करेगा ही करेगा, उसमें कोई डाउट नहीं. श्योर. तो ये सारे जो सर के बुक में दिया हुआ है, सो अराउंड आई थिंक इन इंडेक्स इफ आई कुड टेल यू देयर आर 68 कॉमन रेमेडीज, देन देयर आर 46 रेयर रेमेडीज एंड देन देयर आर 10 नोजोड्स. तो जिस पे सर ने बात किया है लास्ट में उसके ऊपर बात करेंगे सर. बट ये सर, तो ये रीनल कैलकुलर तो मेरा फेवरेट था. आई वांटेड कि आप मतलब हम लोगों ने इतना यूज किया है, इतना तो I thought कि let all my friends who are listening to this, they also be benefited, इसलिए स्पेसिफिकली पूछा मैंने. थोड़ा और एक थोड़ा इनपुट देना चाहता हूँ. प्लीज सर, प्लीज. बहुत से केसेस में स्टोन पास होने के बाद अभी क्या करना है, पेशेंट पूछता है आप लोग, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट. क्योंकि रिपीटेशन, रिफॉर्मेशन ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है. 2 साल 3 साल के बाद फिर स्टोन फॉर्मेशन होता है. तो फॉर्मेशन, टू स्टॉप द टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन, होम्योपैथी में 2 इंटरेस्टिंग रेमेडीज है. प्लीज नोट कार्डस एंड चाइना. कार्डस 200 डेली मॉर्निंग एंड चाइना 200 डेली नाइट फॉर 3 months. Along with natrum for 6-6. Along with natrum for 6-6. अगर ये 3 महीने अगर दे दिया पेशेंट को, ये स्टोन पास होने के बाद, तो कॉन्फिडेंटली गारंटी के साथ आप बोल सकते हैं पेशेंट को कि अभी उसके बाद तुझे फिर स्टोन फॉर्मेशन नहीं होगा. तो वही किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था बिफोर आई कुड आस्क, आपने एकदम बता दिया सर. राइट, उसका सबको मिल गया आंसर. सर एक ही सिर्फ क्वेश्चन इधर सर ये है कि सर कैल्केरिया रेनालिस का क्या रोल होता है सर? व्हाट इज कैल्केरिया रेनालिस? नो डाउट वेरी इंटरेस्टिंग रेमेडी, लेकिन वो सपोर्टिंग एक्ट करती है. वेल सिलेक्टेड जो रेमेडीज है उसके साथ यू कैन गिव कैल्केरिया रेनालिस इन 6-6 potency, especially in trituration form, that helps to promote the action of our main remedy, calcarea renalis. And no doubt there are 4 mother tinctures. Number 1 is Berberis vulgaris, then hydrangea, then Phyllanthus and Cratavia. ये
4 रेमेडीज ऐसे मदर टिंचर्स जो आप इसके साथ दे सकते हैं। यस। बर्बेरी सुअल, हाइड्रेंजिया, क्रेटाविया एंड फाइलेंथस। फाइलेंथस। हाँ, और उसके बाद इफ पेन इज देयर, सीवियर पेन, स्पाज्मोटिक पेन, you can definitely think of Colocin or Diascorin. ट्रू। 90% केसेस में आप मैं एश्योरेंस आपको दे सकता हूँ कि किडनी स्टोन के पेशेंट्स में आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए और पेशेंट को रिलीफ दीजिए और खुद को आनंद पाइए। और एक कॉशियसली आपको मैं बोलना चाहता हूँ, इन केसेस ऑफ स्टैगहॉर्न कैल्कुला, इन केसेस ऑफ स्टैगहॉर्न कैल्कुला मुझे आज तक एक भी पेशेंट में, नॉट अ सिंगल पेशेंट मुझे रिजल्ट आया नहीं। वो तो सब Stag-on मतलब जो कैल्कुला सारे सीनियर प्रैक्टिशनर्स ने बोला है कि स्टैग ऑन है तो डोंट टच हाँ, अननेसेसरी पेशेंट को, यू ये एंड अप हर्टिंग। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबको, स्टैगन केस पेशेंट में, स्टैगन केसेस में आप पेशेंट को यूरोलॉजिस्ट के पास भेज दो, सर्जरी के लिए भेज दो, कोई प्रॉब्लम। आपका पेशेंट का आपके ऊपर का जो फेथ है वो और बढ़ता है। और नहीं, डॉक्टर ने अपने को अच्छा गाइड किया। सो सर, स्लोली आपका 10 इयर्स 12 इयर्स जैसे ही आपका जैसे प्रैक्टिस बढ़ता गया सर, तो आपका जैसे सक्सेस बढ़ा, तो और कौन सी चीजों में आपको लगा कि योर हैंड्स ऑन, या फिर आपका जो कॉन्फिडेंस था, कौन से डिपार्टमेंट में, रीनल कैल्कुलाई को हो गया, what are the other systems which you felt more confident, or where students should apply their brain, use their brain on? शुरू में क्या हुआ, डॉक्टर धर्माधिकारी के पास जब मैं काम करता था, मुझे नंबर ऑफ पेशेंट ज्यादा देखने की आदत हो गई थी, 100, 150, 200 पेशेंट्स डेली देखने। उसके बाद जब मैंने मेरा प्राइवेट क्लिनिक शुरू किया तो मुझे इतना तो पेशेंट्स तो शुरू में तो पॉसिबल नहीं था, किसी को पॉसिबल नहीं, तो मैंने पेरीफेरी शुरू किया वो टाइम। मैंने मॉर्निंग टाइम में मैं अलग अलग गांव में जाता था, वहां प्रैक्टिस शुरू किया। फॉर एग्जांपल मंडे में जुन्नर जाता था, ट्यूसडे में राजगुरु नगर जाता था, वेडनेसडे में चिंचोर जाता था, थर्सडे में अहमदनगर जाता था, फ्राइडे में फिर राजगुरु नगर जाता था, संडे मेरा नेटिव प्लेस नारायणगांव, वहां जाता था। रीजन बिहाइंड दैट इज कि नंबर ऑफ पेशेंट ज्यादा देखना चाहिए। राजगुरु नगर में आपको हंसी आएगी, लेकिन एक चैरिटेबल क्लिनिक था, होम्योपैथी क्लिनिक, हमारे दोस्त लोगों ने चालू किया था। तो हम वो टाइम 84 की बात है, वो टाइम हमारे चार्जेस थे 3 रुपीज फॉर 1 वीक मेडिसिन प्लस एग्जामिनेशन, कंसल्टेशन प्लस मेडिसिन, चार्जेस वे 3 रुपीज, एंड उसमें से 2 रुपए मुझे मिलते थे, 1 रुपए ट्रस्ट को जाता था। लेकिन वो टाइम मैं 100 पेशेंट वहां देखता था। वो जो काम किया, वो आज बेनिफिट उसका आज मिलता है। नंबर ऑफ पेशेंट ज्यादा देखने से एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, रेमेडी इमीडिएटली समझ में आ जाती है कि क्या रेमेडी उसको देना चाहिए, क्या। और उसके बाद मुझे रेयर रेमेडी के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट शुरू हुआ। उसके बाद मैंने रेयर रेमेडीज बहुत ज्यादा यूज करना शुरू किया और उसके रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं। बहुत से रेयर रेमेडीज रूटीनली मैं यूज करता हूँ, रूटीनली यूज करता हूँ। सर, मैं वो पूछने ही वाला था कि आपके जो आप जो इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर रहे हो, तो बहुत सारा रेयर हम लोग के लिए रेयर रेमेडीज होता है, तो आपके लिए वो कॉमन रेमेडी होता है। तो ऐसे कॉमन रेमेडी कौन से जो हमारे पर्सपेक्टिव से रेयर हैं, लेकिन कौन से ऐसे रेमेडीज जो बहुत रेयर हैं, जो नहीं लोग यूज कर रहे हैं, बट आप कौन सा रेमेडीज बहुत कॉमनली यूज करते हैं? राइट। अब एक बहुत अच्छे टिप देता हूँ मैं सब मेरे दोस्त लोगों को। इन केसेस ऑफ विटिलिगो, ल्यूकोडर्मा, नो डाउट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट ल्यूकोडर्मा। आज भी मुझे डिफिकल्टी आती है बहुत से केसेस में, लेकिन 90% केसेस में मेरे एक स्पेसिफिक ड्रीम है विटिलिगो पेशेंट्स में, ड्रीम्स of dirty toilets, dreams of dirty toilets, or the remedy is ozone.
ओजोन। तो ऑलमोस्ट ऑल केसेस में मैं ओजोन से स्टार्ट करता हूँ ओके ट्रीटमेंट। ओके और मैं वो विदाउट कोई उन्होंने बताने से पहले मैं पूछता हूँ उनको डायरेक्ट क्वेश्चन। मुझे मालूम है कि होम्योपैथी में डायरेक्ट क्वेश्चनिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं करता हूँ ओके कि आपको ये ड्रीम आता है क्या? ओके और 90% के पेशेंट्स मुझे हमें ये ड्रीम, और वो आश्चर्य होता है उनको कि इनको कैसे क्या ये पता चला। अभी वो ये ड्रीम और विटिलिगो उसका क्या रिलेशन है आई डोंट नो। मुझे रियली ऑनेस्टली मैं बोलता हूँ मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो अपने लिटरेचर में है। विटिलिगो में के अंडर आप जाएंगे तो ओजोन लिखा है। पायरारारा करके एक रेमेडी, पायरारारा, ओके that is also very effective remedy for vitiligo। और तो सबको मालूम है, सोरालिया कॉर है, हाइड्रोकोटाइल है, नेट्रमोर है, सेपिया है, ऑल रेमेडीज है। लेकिन जो रेमेडी के एक्शन बूस्ट करने के लिए जो ट्यूबरकुलिनम जैसे नोडोड जैसे देना चाहिए, वैसे आप ओजोन यूज करके देखिए और खुद आप वो रेमेडी देके उसके रिजल्ट्स आप खुद देखिए, फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अरे नहीं ये रेमेडी देना चाहिए। सो ये रेमेडी ओजोन को 30 पोटेंसी से शुरू करना चाहिए। 1 m सिंगल डोज, 1 m सिंगल डोज, सिंगल डोज, सिंगल Okay, डोज। sir. And sir, I'll come to something very different. कि सर हर टीचर जो हमारे पास हम लोग जो टीचर से कन्वर्स करते हैं, तो वो बोलते हैं बोरिक पढ़ना चाहिए, बोरिक पढ़ना चाहिए। आपका बोरिक को लेके इतना शार्प मेमोरी कैसे हुआ सर कि आप फुल स्टॉप आप ऐसे, क्योंकि मेरे को याद है कॉलेज के ओपीडी में जब भी हम लोग आपसे सीखने आते थे, आप बोलते थे मैंगी फेरी इंडिका, सेकेंड लाइन, थर्ड वर्ड सोरियासिस, ऐसे बोलते थे आप। तो ऐसा ऐसा कोई किसी को, अभी इतने सारे स्टूडेंट हैं, अभी 130 लोग हमको सुन रहे हैं सर इस वक्त, और बाद में उसको हजारों बार सुना जाएगा। कैसे कोई ऐसा कैसे हो सकता है सर कि इतना ज्यादा फुल स्टॉप और कॉमा भी याद हो जाए, वर्ड्स भी याद हो जाए, कैसे होता है ऐसे? मैं पूरा दिन, एक तो मेरा जो ओपीडी टाइमिंग है वो मैं ऑलमोस्ट 12 आवर्स है। मैं यही करता हूँ, मैं दूसरा कुछ काम धंधा करता ही नहीं हूँ, सिर्फ बोरिक, एलएस और मैं। हर एक पेशेंट के साथ मेरा नया कुछ मिलता है, नया कुछ। आज ही मेरा एक नया इन्वेंशन नहीं है, आज मुझे समझ में आया, बेरिलिन मेट। जनरली बेरिलिन मेट तो अपने मन में आता है स्किन, लाइकेन प्लेनस और व्हाटएवर, लेकिन बेरिलिन मेटालिकम में इतना इंटरेस्टिंग लाइन उन्होंने लिखा है कि एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस विथ और विदाउट गॉलस्टोन्स। इतनी इंटरेस्टिंग बात है, इवन इन किडनी स्टोन्स में बेरिलिन बहुत ज्यादा हाईलाइट किया। वो पढ़ना चाहिए रोज, रीडिंग रोज चाहिए, रोज एक दिन भी आपका ऐसा नहीं जाना चाहिए कि वो दिन आज बोरिक नहीं ओपन, रोज पढ़ना चाहिए। एरिस्टोलोकियस है, एपोसाइनम एंड्रो, फर्स्ट लाइन आप देखिए एपोसाइनम एंड्रम की क्या लिखा है, एपोसाइनम एंड्रो, एपोसाइनम कैनेडियंस के बाद जो है एपोसाइनम एंड्रो, फर्स्ट लाइन आप पढ़ो क्या लिखा है, प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स, ऐसा उन्होंने लिखा इन रूमेटिज्म, एपोसाइनम एंड्रो। सब प्रेशनर स्टूडेंट सबको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये पढ़ो और ये अप्लाई करो। सिर्फ पढ़ने से होता नहीं, ये अप्लाई करना चाहिए। सामने अगर पेशेंट अगर सामने है और उसके बाद अगर वो रेमेडी आ गई ना, तो वो हमेशा याद रहती। हम क्लिनिक में ये टाइप में काम करते हैं। अच्छा। पेशेंट के सामने रेमेडी निकालने के बाद फिर वो फिक्स हो जाती है अपने मन, ये टाइप में हम काम करते हैं, चलता है। दूसरा सर, अभी मैं कॉलेज मतलब मेरे आपने जो कॉलेज ओपीडी में हम लोग को जो टिप्स दिए थे, मैं वो सिर्फ सबके साथ शेयर करता हूँ। आपने बोला था कि जीरियाट्रिक बोन एंड जॉइंट डिसऑर्डर में
हाँ, every homeopath should have specialization, extra knowledge right, about rheumatic remedies of geriatric age group. अब right, पीडियाट्रिक एज ग्रुप का बच्चा, अभी वो चीज है जो मेरे को अभी तक याद है, बिकॉज बहुत साल हो गए कि मेरे फाइनल ईयर में, उसको काफी टाइम हो गया सर, 2010-11 की बात कर रहा हूँ कि मैं आपका ओपीडी में था. यू सेड पीडियाट्रिक एज ग्रुप का बच्चा 4 दिन आएगा, 5 दिन आएगा, ठीक हो जाएगा, चला जाएगा. गायनेक केसेस थोड़े टाइम आएंगे, थोड़े टाइम नहीं रहेंगे, फिर चले जाएंगे. आप ट्रीट कर दो वो 15. जो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं, बोन एंड जॉइंट डिसऑर्डर्स हैं, जीरियाट्रिक एज ग्रुप के डिसऑर्डर्स हैं, बोले वो 100% तो देयर इज नो, मतलब देयर इज नो एंड टू इट. पीपल आर पुट right, ऑन कैल्शियम सप्लीमेंट्स, पेन किलर्स, एंटी इंफ्लेमेटरी बाय ऑर्थोपेडिक फिजिशियन, ऑर्थो सर्जन उस पर डाल देता है, उनको वो खाने में प्रॉब्लम रहता है. जीरियाट्रिक एज ग्रुप, सीनियर सिटीजन का जो सुबह लाफिंग क्लब होता है, गार्डन में बैठता है, शाम को बैठता है. तो आपने बोला था कि आप 1-2 को ठीक कर दो, बाद में वो शाम को गार्डन में जाएंगे, उसको बेटर रहेगा, वो बाकी लोग को लेके आएंगे. तो बोले correct, आपको अगर ये एज ग्रुप में, ये सर्टेन एज ग्रुप विद दिस मेडिकल कंडीशंस, इफ यू स्टार्ट फ्लरिशिंग इन योर प्रैक्टिस, तो यू विल हैव अ ब्राइट फ्यूचर. बिकॉज वो लोग पेशेंट जब तक है, वो पेशेंट जब तक है, वो आपका दवाई लेता रहेगा, आपका ब्रेड एंड बटर चालू रहेगा. right, तो दिस इज व्हाट right. आई रिमेम्बर वेरी वेल के तो उस पे सर हाउ वन कैन स्टार्ट. जैसे आपने बोला कि आपने पाइल हेमोरॉइड्स पे थोड़ा सा हमको यू थ्रू लाइट. कैन यू ऑल्सो के ओल्ड एज ग्रुप के जो बोन एंड जॉइंट डिसऑर्डर्स हैं, जो डीजनरेटिव, तो हाउ डू वी स्टार्ट अप्रोचिंग दीज पेशेंट्स, कैसे अप्रोच करेंगे सर? मैं थोड़ा पेडियाट्रिक के बारे में बताता हूँ. प्लीज मेनली tonsillitis, Okay. acute cold, coryza, cough, हाँ. and very interesting adenoids. In adenoids cases, वो पेडियाट्रिशियन हमेशा बोलते हैं नहीं आपको सर्जरी करना पड़ेगी, और आप कॉन्फिडेंटली उसको बोल सकते हैं कि डोंट डू सर्जरी, होम्योपैथी से हम ठीक कर देंगे या क्योर कर देंगे. एक्सरे भी उसके बाद के जो फॉलोअप एक्सरे है वो भी आपको दिखा सकते हैं कि रिजल्ट्स आ गए. वेरी हार्डली 3-4 रेमेडीज है, लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग रेमेडीज है. एक वन इज एक तो स्टार्ट विद बेसिलिनियम. ये मेरा एक फर्स्ट टिप है. एनी केस ऑफ एडेनॉइड्स, ट्रीटमेंट शुड बी स्टार्ट विद बेसिलिनियम 1 mg सिंगल डोज, फॉलोड. एक तो आर्सेनिक आयोड दे सकते हैं. If the patient is thirstless, start arsenic iode. If the patient is thirsty, arsenic alba. Agraphis nutans, very good remedy for adenoidal growth, adenoidal hypertrophy. Agraphis nutans. Then kali nitricum, sanguinary nitrate. And recently, I have been working with 2 remedies. One is Mucor. No doubt rare remedy, Mucor, and another is Adamas. ये 2 remedies. And if infected tonsillitis is there, think of streptococcus. Think of streptococcus. And फिर biochemic में you can give ferrum phos, calcareous sulf, silicia. What is the best suitable for your patient? Agraphis nutans. Okay, sir. प्राची आंबेकर मैडम बोल रहे हैं. I remember Agraphis nutans given by sir in our DSHMC OPD. Everybody Right, remembers your sir Thank DSHMC you. OPD, sir. Also, sir, one very good remedy for constant nose discharge and throat irritation and constant, which you had highlighted one was hepatica triloba, where there is constant snuffling from the nose, when there is sneezing, stuffing, nasal congestion. So another interesting remedy is Loofah. Very good remedy for in pediatric cases. Okay, sir. Sir, your very good student, sir, Dr. Vansh Lunia from Aurangabad is asking how big pharmacy is too big pharmacy for a homeopath. How big
how big pharmacy is too big for a homeopath? कितना बड़ा होना चाहिए फार्मेसी? कितना बड़ा हो सकता है सर? अपने क्लिनिक की फार्मेसी। हाँ सर, क्योंकि आपका भी देखा है अभी धीरे धीरे हम लोग भी वैसे ही फार्मेसी को ग्रो कर रहे हैं, बढ़ते ही जाता है सर राइट। धीरे धीरे। हाँ, So नहीं, that's why he's asking बहुत से लोग बहुत लिमिटेड ड्रग yeah. में प्रैक्टिस करते हैं और Yes. अच्छी प्रैक्टिस भी करते हैं, अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन मुझे वो नहीं, मैं रेयर रेमेडी के पीछे बहुत भागता हूँ और बहुत से रेयर रेमेडीज रेगुलर यूज करता हूँ, बहुत से रेमेडीज। ओके, और उसके कुछ टिप्स भी मैं हाँ हाँ सर, देना चाहता हूँ। प्लीज सर। एलियांथस ग्लैंडुलोस, एग्रेटिस को बताया। Arbutus, another interesting remedy. Arbutus andra. Arbutus. Symptoms shift from skin to joint. Okay. Skin to psoriatic arthritis के लिए Arbutus और मेरा और एक फेवरेट ड्रग है बेलिस्पर। बेलिस्पर वो ज्यादा हाईलाइट का होता नहीं है psoriatic arthritis में, लेकिन बेलिस्पर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे। Another remedy asparagus. पेन लेफ्ट स्कैपुला। ओके, लेफ्ट स्कैपुला। कॉमन जो एलिमेंट्स है ना, जो जनरली बिगिनर्स को मैं बोलता हूँ, कॉमन जो कंडीशंस है उसके ऊपर आप ध्यान ज्यादा देते हो, कॉमन एलिमेंट। और जो होम्योपैथिकली वी कैन ट्रीट वेरी वेल, फॉर एग्जांपल कल्किनल्स पर कुछ एलोपैथी में कोई रेमेडी नहीं है, कोई बस लोकल स्टेरॉइड इंजेक्शन के अलावा उनके पास कुछ नहीं, लेकिन उस एग्जैक्टली ऑपोजिट होम्योपैथी में इतने अच्छे रिजल्ट्स है, इतने अच्छे रिजल्ट्स है। मेरा फेवरेट रेमेडी है लाइसिनम। स्टार्ट विथ लाइसिनम 1 mg फर्स्ट डोज एंड फॉलोड इफ द calcaneal spur is on right side, definitely think of ammonium mure and valerian. Right calcaneal spur. For left calcaneal spur, there are two remedies. One is Bryonia and another is Xanthozyme. Yes, sir. Two remedies are there. And then if bilateral calcaneal spur is there, so Arenia diadema, pulsatilla, rhododendron and calcareous. बस उससे ज्यादा कुछ जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सिंसियरली बोल रहा। और इससे रिलीफ आपको पेशेंट को आप दे सकते हैं। टॉकिंग बिगिनर्स के लिए बोल रहा हूँ। सर बिगिनर्स also feel that there is a lot of scope of homeopathy in gallstones, sir. Can you throw some more light on gallstone, colic gallstones? Do actually gallstones melt and they can be thrown out? Yes, yes, definitely gallstone के लिए curative treatment homeopathy में है। Yes, sir. Remedies are Cardus, China, Chelidonium, all liver remedies. Another interesting remedy is Fel-Tauri. Fel-Tauri, especially I use in trituration form 6x. Another remedy is Calculobili. जैसे किडनी स्टोन में रहना कैल्केरा रहना, इसमें कैल्कुलोबिली रेमेडी फ्रॉम कैल्कुला, बिलियरी कैल्कुला। मैग्नीशियम सल्फ एक बहुत अच्छा रेमेडीज है, मैग्नीशियम सल्फ फॉर बिलियरी कैल्कुला। इवन can I add one, sir? Can I add one, sir? In biliary calculus, yes. Boldo mother tincture, sir. Boldo associated with some malignant factors in gallbladder or liver malignancy or family history of cancer. Liver cancer. Definitely think of Boldo. And in mother tincture, Chionoethus is very good effective remedy for biliary calculi. Chionoethus. There are two mother tinctures, Chionoethus and Sinothus. Chionoethus is a liver remedy and Sinothus is spleen remedy. Spleen remedy. Minor difference is there.
Sinothus, even Arenia diadema. Diadema. You can think of, you can open Boric Matremedica and you will find Arenia diadema as a spleen remedy. Arenia diadema. So, even in cases of calcaneal spur, you can ask the patient for spleen, history of spleen disease or spleen complaints and confirm the remedy RNA diadema. Yes, sir. So that is it. I hope सबको आंसर मिल गया है. सब लोग बहुत गॉलस्टोन लिख रहे थे, तो इसलिए मैंने पूछा है गॉलस्टोन सर को. Okay, sir. Another Yes, remedy is Aristolochia clematis. Clematis. Rheumatic complaints, especially after menopause. कितने केसेस आते हैं अपने पास, कितने लेडीज आते हैं, नहीं नी पेन शुरू हुआ है, कब हुआ? मेनोपॉज के बाद शुरू. कुछ नहीं, थिंक ऑफ एरिस्टोलोकिया क्लेमेटिस एंड सी द रिजल्ट. रिजल्ट देखो आप, रिजल्ट देखो. Dolichos, another interesting remedy. Dolichos, intense itching, intense itching with no rash, no eruptions. Itching with no eruptions. Itching without eruptions. Without eruption. Dolichos. And eruption without itching. Eruptions without itching. Remedy is Secutavir. Boric open करके देखिए. Eruptions without itching. Secutavir. Secutavirosa. Secutavirosa. मदर टिंचर्स के बात कर चल रही थी. डैमियाना जनरली सबको मालूम है फॉर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और स्पर्म प्रॉब्लम, इवन माइग्रेन एक एडिशनल उसका एक. लेकिन मैं डॉक्टर फारूक मास्टर सर से 6 महीने पहले उसका एक इंटरेस्टिंग बात सीखा हूँ डैमियाना की, कि इट रेगुलेट्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इन यंग गर्ल्स. मैंने कभी आज तक यूज नहीं किया था. उसके बाद सर ने सिखाने के बाद मैंने वो यूज करना शुरू किया. डैमियाना because Allen's में सर बल्कि ओवरीज लिखा है इसलिए. राइट, बल्कि ओवरीज. यस सर. So what other tinctures would you suggest? इसका मतलब यह है कि सीखना चाहिए. कितना भी आपका एज होने दो, कितने ही सीनियरिटी आने दो, रोज कुछ ना कुछ सीखना चाहिए. स्टूडेंट लोगों से मैं सीखता हूँ बहुत से कुछ नए, रोज कुछ ना कुछ इनपुट्स मिलते हैं और सीखना चाहिए. सर बोन एंड जॉइंट डिसऑर्डर्स में मदर टिंचर्स कौन सा यूज करेंगे सर? जनरली गुलथेरिया बेस्ट पेन किलर है. क्यूरेटिव एक्शन ज्यादा नहीं है गुलथेरिया. सर Gaultheria there are two. One is Procurumbrens and one is Gaultheria gomeri. So which is the one for bone and joint, sir? P. Okay, P. Procurumbrens. Another mother tincture Boswellia. Rheumatic complaints associated with GI. Boswellia very good remedy for ulcerative colitis. Okay. अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में और एक मैं टिप देना चाहता हूँ. एक रेयर रेमेडी है क्लोरमफेनिकोल. Okay. Very good remedy for ulcerative colitis. Even Merck Soul, ये सब जब फेल होते हैं, think of chloromphenical in ulcerative colitis. Here at Farooq Master Sir's clinic, we use more of Acanthus aspera for ulcerative colitis. Ulcerative colitis, there are Acanthus aspera and Atista indica. Two remedies, sir. With both in mother tinctures, both have their own indications, but it gives wonderful results, sir. Along with the constitutional remedy, it gives wonderful results, sir. Correct. And sir, I know we are taking too much of your time, but just the last part, sir, please can you suggest some more books to read? I know, sir, your ideal books are Allen's and Boric, but now I just want when you went from a student, initial practitioner to now you're the
one of the leading practitioners of India. So how you would see that कैसे बुक्स चेंज हो गए? आप एलन बोरिक तो पूरा 40 साल लेके चले, लेकिन मैं कुछ और भी एलन तो सर आपको बोरिक इंटरेस्ट एलन बोरिक रीड करने में पूरा जन्म खत्म हो जाता है। सर स्टिल अभी हमारे स्टूडेंट्स को बहुत इंटरेस्ट है कि आपने किसी और बुक से या कोई और ऑथर से कुछ और हाईलाइटिंग कुछ सीखा है तो? नहीं, रिसेंटली मैंने उस 70 इयर्स प्रैक्टिस माय होम्योपैथिक प्रैक्टिस है इनका, कोपिकर सर का। हाँ, कोपिकर सर का पढ़ा। उन्होंने जो लिखा है उनके बुक में कि 12 केसेस एक्यूट एपेंडिसाइटिस का उन्होंने इग्निशिया से क्योर किया। ओनली वन रेमेडी, दैट इज इग्निशिया। लेकिन मैंने ऑलमोस्ट 5-6 केसेस में दिया, मुझे नहीं फायदा। लेकिन सर ने बहुत कॉन्फिडेंस से लिखा है, उसमें 12 केसेस उन्होंने बताया। यस तो वो तो वन ऑफ मेरा भी बहुत सबसे फेवरेट बुक वही है सर। मैं सबसे ज्यादा वो मेरे लिए ऑलमोस्ट आई हैव रेड इट एटलीस्ट 5-6 बार पढ़ा है। बहुत इंस्पायरिंग बुक है सर। कि कैसे उन्होंने भी सब टॉपिक को टच किया है। लास्ट चैप्टर तो वो है कि कितना फीस लेना चाहिए, वो लिखा है उन्होंने कि कैसे फीस लेना चाहिए। आइरिस टेनेक्स के रिजल्ट्स मुझे अच्छे मिले एक्यूट एपेंडिसाइटिस में, बेलेडोना और आइरिस टेनेक्स। अभी और आइरिस टेनेक्स अभी एपेंडिसाइटिस में सर वो भी है ना कि वो एकिनेशिया कब यूज नहीं करना चाहिए ये लिखा हुआ है बोरिक के। when already the septic foci has set in, that time if you give ekinesia it will burst out. Right. सर जस्ट कमिंग टू द लास्ट पार्ट सर, इस बुक को कैसे हम लोग, ये आपका बुक है सर, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि हम लोग पहले कुछ लोगों में थे जिनके पास ये बुक आया था। यस सर, आप कोई भी एक आप रैंडमली सर जस्ट ओपन रैंडमली व्हिचएवर पेज कम्स सर, आप वो रेमेडी के बारे में अगर हम सबको उस रेमेडी का इंपॉर्टेंस बताएंगे तो दैट वुड वी विल टेक दैट एज द लास्ट लेसन फॉर टुडे एंड फिर हम we'll conclude the session sir. Remedies Stellaria media, chickweed kingdom में plant kingdom है। Okay sir. Rheumatic complaint जो है sharp shifting rheumatic pains in all parts of body, gouty, enlarged and inflamed finger joints, rheumatic pains in different parts of body, sharp pain in small of back, over kidneys in gluteal region, pain in shoulder joints and arms, and synovitis, bruise feeling. Mind symptoms में great irritability, lassitude, indisposed to work, and modalities में aggravation, morning, warmth, tobacco, and admiration, evening, cold air and motion. Most important concomitants: sluggishness of all functions of body, passive congestion of liver engorged, swollen with stitching pain, sensitive to pressure, burning pains all over the liver. This is a concomitant. So in the yes sir. So I'll tell them how to procure the book, which I have read, which I all want if my friends will read, they will benefit a lot from the huge practice of Dr. Sanjeev Dole sir. I would also like to tell all my friends कि संजीव डोले सर के फादर को अभी पद्मश्री recently मिला है. So we would congratulate you, your family, that your hard work has paid and it inspires us that हम लोग भी hard work करेंगे तो हम लोग को भी results मिलेंगे. होम्योपैथी में हमको सबको आपका आशीर्वाद मिले सर. आपके टाइम के लिए बहुत बहुत सर आपका शुक्रिया. Thank you. नमस्कार. We will हम लोग बाद नेक्स्ट टाइम मिलेंगे. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग. वी हैड 130 पीपल एट अ टाइम, सो आई होप वी ऑल विल रीड एंड लर्न. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीबॉडी. गुड बाय, टेक केयर.